Hi friends, in this session we'll start with chapter number 1 end exercise. End exercise के कुछ questions बहुत ही easy है that you can do it by your own ways, but कुछ numerical ऐसे हैं जो साथ में आज discussion करते हैं. So do one thing, one side you open your end exercise chapter number 1. सबसे पहले आप लोगों को statement read करना है 2 times, twice, and then take a 1 minute pause. सोचिए क्या दिया हुआ है और क्या आपको ढूंढना है. मीन्स गिवन डेटा एक्सट्रैक्ट कीजिए and then find out statement में क्या ढूंढना है. So we'll start with the first question, that is 1.5 end exercise chapter number 1. In this numerical you are given a 0.375 molar. Now सबसे पहले ये मीनिंग समझे. 0.375 molar means 0.375 moles of CH3COONA in 1000 ml of solution. Why? Because molar का definition क्या था? Number of moles of solute divided by volume of solution in liter. So this many moles of sodium acetate in 1000 ml of solution. So 0.375 mole 1000 ml में है, तो 5000 ml में कितना होगा? That is really very easy. Divide by 2 कर लीजिए, you get your answer. So 0.375 multiplied by 500 divided by 1000, you can get your x. Means this is end exercise. यहाँ पे सारे न्यूमेरिकल मैं नहीं आपको गिनने हैं. This gives you a simple hint. कैसे स्टेप करने हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा. प्रैक्टिस आपको करनी है. तो यहाँ पे आप सबसे पहले x ढूंढ लीजिएगा. मीन्स जो भी आंसर आ रहा है that becomes your x mole. Now molecular weight of CH3COONA that is given in your statement. स्टेटमेंट में देख लीजिए एक बार, आपको दिया हुआ that is 82.0245 U. Now this is number of mole. N is given mass divided by molar mass. आपको given mass ढूंढना है. So that is given mass is equal to number of mole multiplied by molecular weight. Number of mole कहाँ से मिलेंगे? ये x multiplied by molecular weight कहाँ से मिलेगा? That is given in your data. Multiply कर लीजिए, you get your y. That is your final answer. So this is all about your first numerical 1.5. Okay, after completion of 1.5, let's read the statement 1.6. In 1.6 क्या लिखा हुआ है? Calculate the concentration of nitric acid in mole per liter in a sample which has density is 1.41 gram per ml and the mass percentage of nitric acid is being 69%. तीन चीज पे यहाँ पे फोकस कीजिएगा. फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट मोलारिटी आपको ढूंढना है. सर कैसे पता चलेगा मोलारिटी ढूंढना है? आगे बढ़िए, क्या लिखा हुआ है? मोल्स पर लीटर. जो अगर मोलालिटी होता तो मोलालिटी का डिनोमिनेटर क्या था? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. बट यहाँ पे मोल्स पर लीटर दिया हुआ है, सो दैट्स व्हाई इट इज मोलारिटी. सेकेंड थिंग, यहाँ पे आपको डेंसिटी दी हुई है, दैट इज D is equal to 1.41 ग्राम पर ml. एंड लास्ट जो नाइट्रिक एसिड है वो गिवन डेटा में 69% दिया हुआ है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्टेटमेंट. आप फिर से 2 बार स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, देन विल स्टार्ट द सॉल्यूशन. सो 69% मींस 100 ग्राम HNO3 है, उसमें से 69 ग्राम HNO3 है, रिमेनिंग इज वाटर. So molecular weight of HNO3 is 63, hydrogen 1, nitrogen 14, oxygen 16, 3 are 48. Sum कर लीजिए, you get 63. First step, you have to find out the number of moles. Number of moles is equal to given mass divided by molar mass. Given mass क्या है? 69 divided by molar mass is 63. You get 1.095 mole. So that is your first answer. Second, volume of HNO3. Just because we have to find out the molarity. Molarity का डिनोमिनेटर क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. तो वॉल्यूम कहाँ से मिलेगा? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. आपको डेंसिटी दी हुई है, मास आपको पता है, वॉल्यूम को इक्वेशन का फॉर्म बना लीजिए. तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी. मास इज 100 ग्राम डिवाइडेड बाय 1.41, यू गेट योर आंसर x ml. सो दैट इज योर x ml. यहाँ पे ml है, ml को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. So concentration of HNO3, that is molarity, is nothing but number of moles of HNO3 जो हमने अभी आगे ढूंढे, divided by x, that is in ml, multiplied by 1000. Why 1000 sir? Just because जो x है वो ml में है, ml को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. So this is your number of moles, numerator part. This is your denominator part, x, that is in ml. And next you have to do it on
liter scale. So that is 1.095 divided by x multiplied by 1000. You get your y molarity. So this is your 1.6 न्यूमेरिकल. कैलकुलेट कीजिएगा और आंसर लेके आइएगा. So next statement 1.7. How much copper can be obtained from 100 gram of copper sulfate? Means how many copper is available in CuSO4 of 100 gram. So numerical is really very easy. सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है. यू गेट योर आंसर. फिर से एक बार स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं. सो मास ऑफ CuSO4, कॉपर इज 63.5, सल्फर इज 32 एंड 16 4 or 64, that is 159.5 U. तो CuSO4 is to CuSO4 है 159.5, उसके अंदर कॉपर कितना होगा 63.5 ग्राम. जो अगर मेरे पास टोटल 1 मोल मीन्स 159.5 ग्राम है तो उसके अंदर 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर होगा. तो 100 ग्राम के अंदर टोटल कितना होगा. सो 100 मल्टीप्लाई बाय 63.5 डिवाइडेड बाय 159.5 इज इक्वल टू x ग्राम. दैट इज योर आंसर. वेरी सिंपल न्यूमेरिकल. So next numerical we have 1.11. What is the concentration of sugar? Sugar is nothing but sucrose, that is C12H22O11. In mole per liter, if it's 20 gram are dissolved in enough water to make a final volume up to 2 liter. Once again, आपको गिवन मास दिया हुआ है शुगर का, दैट इज 20 ग्राम. मोलर मास आप फॉर्मूला से काउंट कर सकते हैं, दैट इज 342 एंड फाइनल वॉल्यूम दैट इज 2 लीटर. सिंपल कॉन्सेंट्रेशन मींस मोलारिटी ढूंढनी है. सो मोलर मास ऑफ शुगर इज 342. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर इज नथिंग बट गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. गिवन मास क्या है 20, मोलर मास इज 342. So you get your number of mole, that is your x. X becomes your numerator. So molarity is number of moles of solute divided by volume of solution in liter. Denominator दिया हुआ that is 2 liter final volume. X आपको यहाँ ऊपर से मिल जाएगा. Put x divided by 2, you get your answer y molar. Small m करना मत भूलिएगा वरना मार्क्स कट हो जाएंगे. Next numerical 1.12. If the density of methanol is 0.793 kg per liter. दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डेंसिटी इज इन केजी पर लीटर. जनरली ग्राम पर ml दी होती है, यहाँ पे डेंसिटी दी हुई है केजी पर लीटर. व्हाट इज द वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 मोलर सॉल्यूशन. मीन्स आपको टारगेट दे दिया हुआ है, आपको क्या बनाना है. व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 मोलर सॉल्यूशन. सो आफ्टर गिवन डेटा, मोलारिटी का एक और फॉर्मूला याद रख लीजिएगा. मोलारिटी इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट. वहां से भी आप मोलारिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. वंस अगेन, मोलारिटी इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट. डेंसिटी क्या है 0.793, बट याद रखिएगा दैट इज केजी पर लीटर एंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज 0.032. सर ये 0.032 कहां से आया. You are given methanol, that is CH3OH. CH3 molar mass is 15 plus 16 plus 1. So basically it's 32U. This is the molar mass of methanol. That is gram per mole. But यहाँ पे क्या है kg. तो that's why 32 converted into kg, that is 0.032. So molarity is 0.793 divided by 0.032. सिंप्लीफाई कीजिएगा, यू गेट 24.78 मोल पर लीटर. सो दैट इज योर मोलारिटी. नाउ नेक्स्ट, M1V1 इज इक्वल टू M2V2. M1V1 क्या है गिवन, M2V2 टू बी प्रिपेयर्ड. टू बी प्रिपेयर्ड मीन गिवन डेटा में स्टेटमेंट में जो आपको दिया था, आपको क्या बनाना है 0.25 मोलर 2.5 लीटर सोल्यूशन फाइनली आपको प्रिपेयर्ड करना है. आपके पास है क्या, आपके पास मोलारिटी है 24.78. तो फाइनल आपको ढूंढना है V1. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दिस डिवाइड बाय 24.78. सिंप्लीफाई कीजिएगा, यू गेट 0.02522 लीटर. दिस इज इन लीटर. लीटर को ml में कन्वर्ट कर लीजिए, दैट इज V1 इज इक्वल टू 25.22 ml. सो न्यूमेरिकल एक बार फिर से देख लेते हैं.
Molarity is nothing but density of solution divided by molar mass of solute. Density दी हुई है, molar mass हमने ढूंढा CH3OH is 32, that is ग्राम, but density kg में है तो ये भी kg में कन्वर्ट किया है, you get molarity. Next formula M1V1 is equal to M2V2. This to be prepared and this is given. M1V1 is equal to M2V2. M1 24.78 जो आपने ऊपर ढूंढा, क्या बनाना है, दैट इज 0.25 मोलर 2.5 लीटर बनाना है, तो कितना वॉल्यूम चाहिए, तो V1 को इक्वेशन का फॉर्म बना लो, ये सामने डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यू गेट योर आंसर इन लीटर, उसको एमएल में कन्वर्ट कर लीजिए. सो दिस इज ऑल अबाउट योर 1.12. So let's start with the 1.17. A sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform, supposed to carcinogenic in nature. अब ये स्टेटमेंट में कुछ नहीं दिया हुआ है गिवन डेटा, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज. स्टेटमेंट स्टार्ट यहां से होता है. द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वाज 15 ppm. ppm इज पार्ट्स पर मिलियन. वंस अगेन ppm मींस पार्ट्स पर मिलियन. एक्सप्रेस दिस इन परसेंटेज बाय मास फर्स्ट. सेकेंड, डिटरमाइन द मोलालिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर सैंपल. दो क्वेश्चन के आंसर देने, फर्स्ट परसेंटेज ऑफ मास बाय ढूंढना है और दूसरा मोलालिटी फाइंड आउट करनी है. सो 15 ppm मींस 15 पार्ट्स पर मिलियन, सो दैट इज 15 डिवाइड बाय 10 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 100. सर ये 100 क्यों किया, स्टेटमेंट पढ़िए, 15% दिया हुआ है, सो दैट्स व्हाई इट्स अ परसेंटेज. फर्स्ट इक्वेशन ढूंढना है, एक्सप्रेस दिस इन परसेंटेज बाय मास, तो परसेंटेज के लिए ऑलवेज 100 आएगा. That is, you get 15 into 10 to the power minus 4. Finally, your answer is 1.5 into minus 3. This is your significant figures में हमने आंसर ढूंढ लिया. That is your first answer. Express this in percentage by mass. First answer is done. Second आपको ढूंढना है molality. So सबसे पहले CH3 का molar mass, carbon 12, hydrogen 1 and chlorine 3 times. That is 35.5 multiplied by 3. You get 119.5 gram per mole. सो 100 ग्राम जो सैंपल हो मेरे पास, तो उसके अंदर कंटामिनेशन है 1.5 into 10 to the power minus 3, तो 1000 में कितना. सर क्यों 1000 से रिस्पेक्ट किया, जस्ट बिकॉज मोलालिटी क्या है दोस्तों, डिनोमिनेटर इज मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो केजी इज ऑलवेज 1000 ग्राम. तो 1000 ग्राम के अंदर कितना होगा, सिंपल 1.5 into 10 to the power minus 2. So this is your second step. Final, put it into this molality term. Molality is nothing but 1.5 into 10 to the power minus 2 divided by 119.5. So finally you get answer 1.255 into 10 to the power minus 4 molal. So this is all about your statement number 1.17. Next is 1.22. ये आप खुद से भी कर सकते हो. If the speed of light is 3 into 10 to the power 8 meter per second, calculate the distance covered by light in 2 nanosecond. 2 nanosecond, nanosecond का मतलब होगा 10 to the power minus 9. So distance travel is nothing but speed multiplied by time. ये ऐसे न्यूमेरिकल आपको फिजिक्स में भी मिलेंगे. 3 into 10 to the power 8 multiplied by 2 nanosecond, तो that is 2 into 10 to the power minus 9. Simplify this, you get 0.600 meter. So this is your answer. Really very easy. 1 marker में भी ये पूछ सकते हैं. So this is all about your today's session. Still, most important numerical जो पीछे है वो हमें सॉल्व करने हैं. That will cover in your next session. Till time आप लोग इतने न्यूमेरिकल अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा. नेक्स्ट सेशन में बाकी क्यों न्यूमेरिकल करते हैं.